Good morning, dear students. Welcome back to the science class. You all know that we are doing lesson number 4, heat of class 7. We have completed almost the explanation of the chapter. A little bit is remaining, which I will send you tomorrow. Today I am going to explain you the answers of Check Your Knowledge 1 and Check Your Knowledge 2 in this video. So, first coming to the Check Your Knowledge 1, which is given on page number 42. First question is, what is the cause of heating or cooling of a body? कोई भी चीज गर्म या ठंडी होती है तो उसका क्या कॉज है, क्या कारण है, किस लिए कोई भी बॉडी हीट या कूल होती है? So the answer is heating or cooling of a body is due to gain or loss of heat to or from the body. कोई भी बॉडी हीट और कूल कब होती है? हीट होती है जब वो हीट गेन करती है किसी बॉडी से, और कूल होती है बॉडी जब वो हीट लूज करती है. एज आई हैव एक्सप्लेन यू इन द वीडियो दैट earlier also I have explained that when a body gains heat from somebody, it gets hot. Like I have given you the example that there is a 1 cup of tea, and if I dip a metal spoon in it, the spoon gets hot. How does it gets hot? Because the heat from the tea transfers to the spoon, causing it to become hot. So कोई भी बॉडी जब किसी चीज से हीट गेन करती है, किसी दूसरी बॉडी से हीट गेन करती है, तो वो हीट होती है. एंड सिमिलरली व्हेन इट लूजेस द हीट, जब हीट लूज करती है, जैसे टी, इस केस में मेटल स्पून हीट गेन कर रही है इसलिए वो हॉट हो रही है, और जो हमारी टी है वो हीट लूज कर रही है एंड इट बिकम्स अ लिटिल बिट कोल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय हीट? दिस ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन. हीट का क्या मतलब है? कोई भी चीज हीट होती है तो आप उससे क्या समझते हैं कि वो गर्म है. सो द आंसर इज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स अस फील हॉट और कोल्ड. हीट एक तरीके की एनर्जी है जिससे हमें पता लगता है कि गर्मी हो रही है या ठंड हो रही है. हमें गर्म या ठंडे का एहसास होता है जिससे वो हीट है, एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. Next question is, what is temperature? Now when a body is heated, you can feel it by touch. Touch करके आप बता सकते हैं कि ये चीज गर्म है या ठंडी है, but you cannot tell the exact measurement how much heated that body is. कितनी गर्म है वो body. If I give you a glass of water and I ask you, tell me how much it is hot. Boiled water, glass of boiled water, and I ask you, tell me how much it is hot, then will you be able to tell it? No, you have to measure its temperature. So what is the temperature? Temperature is the degree of hotness or coldness of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस की जो डिग्री है, डिग्री मीन्स कितना ऑब्जेक्ट हॉट है, कितना ऑब्जेक्ट कोल्ड है, that is the temperature. And I have also told you the device that is used to measure temperature is thermometer. We have learnt about various thermometers also, clinical thermometer, laboratory thermometer we have learned. So temperature क्या है? Temperature is a degree of hotness or coldness. Actually एक quantity है टेम्परेचर जिससे पता चलता है कि कोई भी बॉडी कितनी हॉट और कितनी कोल्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट मेजरिंग स्केल्स ऑफ टेम्परेचर? डिफरेंट मेजरिंग स्केल्स टेम्परेचर के मीन्स जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं वो किस स्केल में मेजर करते हैं. सो बेसिकली देयर आर 3 स्केल्स बट वी जनरली यूज 2. सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल. ये 3 स्केल्स हैं एंड वी जनरली यूज Celsius and Fahrenheit scale because we measure temperature in degree Celsius and degree Fahrenheit. तो ये दोनों commonly ज़्यादा use होते हैं, but Kelvin scale is also there. Next question is 5th. Write the relation between Celsius and Fahrenheit scale. This also I have explained. Celsius और Fahrenheit scale में temperature क्या relation है दोनों में.
means if a value is given in one scale and you have to convert it in another scale, then there is a formula for that, and we have done the questions also based on that formula. Questions भी किए हमने उस formula पे based. So the formula is, if we have to find in Fahrenheit and Celsius scale is given, then we can use this relation. F is equal to 9 by 5 C plus 32. And if we have to find the Celsius scale and Fahrenheit scale is given, then we can use this formula. C is equal to 5 upon 9 F minus 32. So basically this is the relation between Celsius scale and Fahrenheit scale. By using this formula, we can calculate or we can determine the values of these scales if one of the value is given to us. Next, coming to check your knowledge 2, that is given on page number 45. The first question is, what is a clinical thermometer? Clinical thermometer क्या होता है? This I have explained. Clinical thermometer is a thermometer that is used to measure the temperature of the body. हमारी body का जो temperature measure करने के लिए जो thermometer use होता है, that is a clinical thermometer, and it is easily available in almost all the houses. जिस थर्मामीटर से आप टेम्परेचर मेजर करते हैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है. Nowadays digital thermometers are also used for measuring the temperature, but that is the different one. Clinical thermometer is the typical thermometer that was used previously. मैंने आपको वीडियो में शो भी करा था clinical thermometer. Okay, so it is the thermometer that is used to measure the temperature of the body. I hope this is clear. Second question is, what is the range of clinical thermometer? Clinical thermometer की क्या range होती है? उस thermometer में आपने scale देखा होगा जिससे आप temperature measure करते हैं, by which you measure the temperature. What is the scale given on that temperature? So the scale is, a clinical thermometer reads temperature from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. This is the range. 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मामीटर मेजर कर सकता है. Why? Because the normal human body temperature is 37 डिग्री. हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री रहता है. अब इस रेंज से हमारा जो टेम्परेचर है 35 डिग्री से नीचे नहीं जा सकता हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, एंड 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा सकता. सो द रेंज ऑफ द थर्मामीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूज ऑफ किंक इन क्लिनिकल थर्मामीटर? किंक क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है? जो सिल्वर कलर का बल्ब है थर्मामीटर में आगे, उसी के पास आप देखते हैं जहाँ से मर्क्यूरी लेवल मर्क्यूरी राइज करनी स्टार्ट करती है, वहाँ पर एक ऐसे सर्कल बना होता है बीच में. इट इज़ टू ब्रेक द मर्क्यूरी का लेवल को ब्रेक करने के लिए होता है. क्यों होता है? क्योंकि व्हेन वी मेजर द टेम्परेचर, हम थर्मामीटर को माउथ के अंदर रखते हैं, वी पुट द थर्मामीटर इनसाइड अवर माउथ, एंड व्हेन वी टेक आउट द थर्मामीटर, तो क्या होता है, मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में है, तो हम जब टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो वी हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ एंड देन वी विल सी इट इन द थर्मामीटर. बट व्हाट हैपन्स, ड्यू टू द मर्क्यूरी बीइंग इन लिक्विड स्टेट, मर्क्यूरी का लेवल थर्मामीटर में ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा अगर किंक नहीं होगी. तो किंक क्या करता है, मर्क्यूरी को फॉल बैक होने से प्रिवेंट करता है. So the answer is, kink prevents the mercury from falling back into the bulb when taken out from the mouth. माउथ में से निकालने के बाद किंक मर्क्यूरी के लेवल को फॉल बैक होने से प्रिवेंट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर? दिस आई हैव नॉट एक्सप्लेन. मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर क्या होता है? Everybody of you have seen the newspapers. There is a weather report in it. You have heard also.
what is given in the weather report? Maximum and minimum temperature. Maximum और minimum temperature होता है, आपने सुना होगा. What is that maximum and minimum temperature? Maximum temperature means the highest temperature of the day. पूरे दिन का जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है, और जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है दैट इज द मिनिमम टेम्परेचर. हाईएस्ट कब होगा? ऑब्वियसली इन द आफ्टरनून व्हेन द सन रेज आर एट द पीक. तो आफ्टरनून में मेजर किया जाता है मैक्सिमम, और मिनिमम टेम्परेचर नाइट में मेजर किया जाता है व्हेन देयर इज कोल्डनेस. सन की हीट नहीं होती तो उसकी वजह से अर्थ कूल होती है, तो तब आपका मिनिमम टेम्परेचर मेजर किया जाता है. एंड द थर्मामीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज नोन एज द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर. सो द आंसर इज दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर्स रीच्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. एक टाइम पीरियड में टेम्परेचर कितना हाईएस्ट जा रहा है और कितना लोएस्ट जा रहा है, उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज हो रही है दैट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर. लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर. नाउ प्रीवियसली वी हैव रेड हियर द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर दैट वाज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. नाउ लेबोरेटरी थर्मामीटर की क्या रेंज है? लेबोरेटरी थर्मामीटर, द थर्मामीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ other objects rather than the human body. ह्यूमन बॉडी को छोड़ के बाकी किसी भी चीज का आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो आप लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज करते हैं. मीन्स इफ यू वांट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ टी, if you want to measure the temperature of hot water, if you want to measure the temperature of ice, what will you use? You will use the laboratory thermometer. अब इसका जो स्केल है इट वेरीज अ लॉट. जो इसका मिनिमम और मैक्सिमम है, लोवेस्ट फिक्स पॉइंट और हाईएस्ट फिक्स पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस है. क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ हॉट होती है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और कोई चीज़ कोल्ड होती है तो उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, माइनस में जाता है. तो इसलिए इसका रेंज बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर लेबोरेटरी थर्मामीटर मेजर करता है. अब जो आपका बॉइलिंग वाटर है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस. तो 100 डिग्री सेल्सियस का जब टेम्परेचर होगा, वाटर बॉईल होगा, वो आप मेजर करोगे तो यू विल यूज दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर दैट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर. So that's all for today. Rest we will continue tomorrow. Till then, have a good day. Bye bye. Thank you.